بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں خبرنامے کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں زبیر احمد صدیقی، میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ My teams are in resolve that we shall and we must recover every penny which is due for the betterment of the people of Pakistan. شفاف اور فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت کا اہم اقدام، مقدمات کی تفویض اور انتظامی نظام کا اجرا، بدعنوانی اور ٹیکس چوری سے متعلق مقدمات میں پھنسی خطیر رقوم قومی خزانے میں شامل کر کے عوامی فلاح کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانے اور معیشت کو کیش لیس بنانے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم کی ریٹیلرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ برآمدی صنعتیں بین الاقوامی منڈیوں میں مسابقت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ریٹیل بزنس کونسل کے وفد سے گفتگو۔ حکومتی اصلاحات خوشائن ہیں، شرکاء کا وزیر اعظم اور معاشی ٹیم کو خراج تحسین۔ غزہ اور کشمیر دیرینہ تنازعات، خود ارادیت کشمیریوں کا حق، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز ناقابل قبول، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے، افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، پاکستان ترکیہ اور دیگر ممالک اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا TRT کو انٹرویو۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور بحرین کے ہم منصب رمضان بن عبداللہ النعیمی کی ریاض میں ملاقات، میڈیا تعاون میں وسعت، مہارتوں کے تبادلے اور مشترکہ منصوبوں پر تبادلہ خیال، بحرین نیوز ایجنسی اور APP کے درمیان خبروں کے اشتراک کی تجویز، عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین موقع ہے، عطا اللہ تارڑ۔ بحرینی وزیر اطلاعات کا میڈیا کے شعبے میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ PTI کا طرز عمل ہرگز سیاسی نہیں، ان کی سیاست صرف ایک شخص کے لیے ہے۔ بانی PTI چاہتے تھے فوج ان کی جماعت کا ذیلی ادارہ بن جائے۔ سیاسی انتقام کا بہادری سے سامنا کیا لیکن ملکی وقار کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ قومی محاذ پر کامیابیوں سے PTI کی پریشانی بڑھ گئی۔ انتشار کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں آپریشن، فتنۃ الخوارج کے 6 دہشت گرد جہنم واصل، علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، ISPR۔ انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا برطانیہ میں وار منسٹر اور لاک ہل گرین گیریشنز کا دورہ۔ جنرل سید عاصم منیر کو برطانوی فوج کی جدت کے منصوبے اور دیگر امور پر بریفنگ۔ دورے کے موقع پر آرمی چیف کا مصنوعی ذہانت، بغیر عملے کے نظام اور جدید ٹیکنالوجی کے مظاہرے کا مشاہدہ۔ بے نظیر بھٹو شہید نے سیاست میں خواتین کے آگے آنے کا راستہ ہموار کیا۔ جمہوریت کی بقا اور خواتین کے حقوق کے لیے ان کی خدمات مثالی ہیں۔ بی بی شہید نے مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر تاریخ رقم کی۔ ملکی ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر۔ Oh, lovely. Boundaries are starting to be reeled off. Oh, that's found the gap too. Back-to-back boundaries. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چیمپئنز ٹرافی کا تیسرا میچ، جنوبی افریقہ کا افغانستان کو 316 رنز کا ہدف۔ ریان ریکلٹن کی سنچری، ٹیمبا باوما
रॉसी वेंडर डॉसन और एडन मर्करन की निस्फ सेंचुरियां। मोहम्मद नबी की 2 विकेटें, अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। चैंपियंस ट्रॉफी का हाई वोल्टेज टाकरा, पाकिस्तान और भारत इतवार को दुबई में आमने सामने, ग्रीन शर्ट्स की प्रैक्टिस। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करना जरूरी। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पहले मैच की गलतियां नहीं दोहराएंगे, भारत के खिलाफ मुकाबले पर फोकस है। दुबई में भारत को 2 मरतबा शिकस्त दे चुके हैं, इसलिए कोई दबाव नहीं। 100% कारकर्दगी दिखाएंगे फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। कराची के बाद अब कजाफी स्टेडियम में भी लगेंगे चौके छक्के। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में कल रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर में मद्दे मुकाबल। मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और चैंपियंस ट्रॉफी के रंग स्कूल के बच्चों के संग। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की लाहौर में स्कूल के बच्चों के साथ प्रैक्टिस। ग्लेन मैक्सवेल ने तलबा की बॉलिंग का सामना किया। कप्तान स्टीवन स्मिथ ने बल्ले से करतब दिखाकर बच्चों को खूब महसूस किया। छह इस्राएली यरगमालियों और 602 फलस्तीनी कैदियों का तबादला कल होगा। हमास का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे को सबोताज करने का इल्जाम। इसराइली वज़ीर आज़म जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत में रुकावट है। आलमी बरादरी इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात कराए। मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल आलमी बरादरी की फौरी तवज्जो की मुतकाज़ी। काबिज भारतीय इंतजामिया की जानिब से सोपूर में मजीद 2 कश्मीरियों की जायदादें जब्त। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर भारत के मुहासबे का मुतालबा। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर के अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। सदर कांग्रेस मकबूजा कश्मीर। रमजानुल मुबारक में अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। रमजान पैकेज के तहत सब्सिडी की मद में 20 अरब रुपए मुख्तस। पहली बार 40 लाख अफराद को रमजान पैकेज के तहत नकद इमदादी रकम दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स की सिर्फ गैर मुनाफा बख्श ब्रांचेस बंद कर रहे हैं। इदारे के मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का सेनेट में इज़हार ख्याल। कौमी इदारों को कमज़ोर करने का मकसद अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मालूम नहीं PTI वाले पसे पर्दा क्या कर रहे हैं। हम ना तो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और ना ही किसी को पुकार रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे ना पहले बंद थे और ना अब बंद हैं। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई और 26 नवंबर के मुकदमात सियासी नहीं। PTI मावराए आइन और कानून रिलीफ चाहती है। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। किसी को शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब कोई कानून तोड़ेगा तो कानून हरकत में आएगा। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक का PTI रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। खानदान के अफराद, बुकला और पार्टी रहनुमा ज़ाब्ते के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत का कार्ड खेलना शुरू कर देती है। खत लिखने से ना डील मिली और ना ही मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। पहली जामे सियाहती पॉलिसी तैयार। 101 गुरुद्वारों और 53 गिरजाघरों समेत
170 तारीखी मकामात को सियाहती मराकज में तब्दील करने का फैसला। टेक्सला को बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट सिटी बनाने का ऐलान। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर छांगा मांगा को जदीद तफरीगाह बनाने की मंजूरी। मंसूबे से पंजाब की 1000 साला तारीख महफूज होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का आज़म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और नादरा से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोटिंग के इक़दामात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। ई वोटिंग से बड़े पैमाने पर हैकिंग का खतरा है। 35 हल्कों में आजमाइशी बुनियादों पर ई वोटिंग कराई गई थी। इब्तिदाई घंटों में भारत, इसराइल और फिलिपाइन से हैकिंग की कोशिश की गई। रिपोर्ट सेनेट कमेटी को जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन का अदालत में मौक़िफ़। और तब्दीली सरकार का अनोखा कारनामा। पहले से तामीर शुदा मंसूबों के नाम बदले जा रहे हैं। पेशावर का अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम पीटीआई की सूबाई हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसियों का निशाना। नए मंसूबे बनाओ और नाम रखो, पुराने मंसूबों पर अपनी सियासत न चमकाओ। सोशल मीडिया पर अवाम की शदीद तनकीद। स्टेडियम का नाम बदलना बदनीयती और इखलाक से गिरा हुआ इकदाम है। खदशा है नाअहल सूबाई हुकूमत सूबे का नाम बानी की अहलिया के नाम से मंसूब न कर दे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अरबाब खिजर हयात। अहम खबरों की झलक आपने मुलाहिजा की। तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। और अब खबरों की तफसील। शफाफ और फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुकद्दमात के तफवीज़ और इंतज़ामी निज़ाम का इजरा कर दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसाफ की जल्द फराहमी और शफाफियत के लिए जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा है। उन्होंने वज़ारत कानून और इंसाफ की काविशों को सराहते हुए कहा कि इस निज़ाम के इजरा से साइलिन और दरख्वास्त गुजारों को इंसाफ तक बर वक्त रसाई में मदद मिलेगी। Track and trace system which we have now introduced here through this modern technology is really a need of the hour. This initiative will go a long way to address their grievances and provide justice in a reasonable time frame. वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि बदउनवानी और टैक्स चोरी से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात में फंसी खती रकूम को कौमी खजाने में शामिल करके अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Trillions of rupees worth cases are pending at the tribunal level, at higher forms, High Court, Supreme Court, and this is my iron resolve, my team's iron resolve that we will, we shall, and we must recover every penny which is due for the betterment of the people of Pakistan.
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता सालों में टैक्स वसूली के लिए FBI ने ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम मुतारिफ कराया, इससे मतलूबा नताज हासिल नहीं किए जा सके। मौजूदा हुकूमत ने FBI में इस्लाहात लाकर टैक्स वसूली के अमल को शफाफ और काबिल अमल बनाया है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 98% से ज़ायद हुकूमती इक़दामात को ई-पोर्टल पर मुंतकिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती निज़ाम के साथ अदालती निज़ाम का मिलकर काम करना जरूरी है। कनाडा की हाई कमिश्नर लेस्ली स्कैनलन ने कहा कि केस असाइनमेंट और मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा डिजिटलाइजेशन और शफाफियत की जानिब अहम पेशरफ्त है। UNODC के पाकिस्तान में नुमाइंदे ट्रोलस वेस्टर ने वज़ारत कानून और इंसाफ के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस निज़ाम के फाल होने से इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का बाज़ाब्ता इजरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी में शरीक नुमाया शख्सियात में तारीफी असनाद भी तकसीम की। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रिटेलर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा है कि ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात में उन्होंने कहा कि टैक्स न देने वाले रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि FBI इस्लाहात के साथ साथ हुकूमत मईशत को कैश लेस बनाने के लिए भी काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकामी सनद बरामदात में इजाफे के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाए ताकि वो बैनुल अक़वामी मार्केट का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को रिटेलर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि महंगाई और पॉलिसी रेट में खातिर खाह कमी से मसनूआत की खपत और पैदावार में इजाफा खुशाइंद है। उन्होंने हुकूमती इस्लाहात को सराहते हुए कहा कि इसके मईशत पर दूर रस मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत मुल्क का असल असासा हैं। नौजवानों को पेशावराना हुनर से लैस करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवान अफरादी क़ुव्वत की पेशावराना तरबियत के हवाले से बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों की पेशावराना तरबियत के मामले में सनतों और मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केटों की तलब को मद्देनज़र रखा जाए। उन्होंने कहा कि नेफ्टेक नाकिस कारकर्दगी वाले इदारों को ब्लैक लिस्ट और अच्छी कारकर्दगी वाले इदारों की हौसला अफजाई करे। नेफ्टेक को हर किस्म की फंडिंग फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तान में नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद बढ़ाई जाए और तरबियत को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग किया जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत की मुख्तलिफ शोबों में पेशावराना तरबियत और अफरादी क़ुव्वत की बैरून मुल्क खपत के हवाले से आइंदा 3 साल का लाहे अमल पेश किया गया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि नेफ्टेक जून 2025 तक 1,41,000 और अगले 3 सालों में 3,37,000 नौजवानों को तरबियत देगा। अब तक 29,000 से ज़ायद अफराद नेफ्टेक से तरबियत हासिल करने के बाद सऊदी अरब में रोज़गार हासिल कर चुके हैं। नेफ्टेक के तरबियती प्रोग्राम्स में मदरसे के 2500 से ज़ायद तलबा को तरबियत दी जा चुकी है। इन तरबियती प्रोग्राम्स को चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फराहम किया जा रहा है। वज़ारत IT की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि आइंदा 3 बरस में 92,000 से ज़ायद नौजवानों को जदीद IT कोर्सेज कराने और 21 लाख फ्रीलांसर्स तैयार करने का हदफ है। इजलास को नेशनल ICT स्किल एकोसिस्टम के क़याम और पाकिस्तानी नर्सों के बैरून मुल्क रोजगार के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने तुर्किया के नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी मुल्क की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खात्मे की यकीन दहानी कराए। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि गजा और मसला कश्मीर देरीना हल तलब मसाइल हैं। तफसील जानते हैं नम्रा सुहेल से। TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाए। Pakistan would retaliate to any attack, no matter of which country, and you have seen that we have, reacted. We were forced to. We are well-wisher of Afghanistan. We want them to prosper. We want to help the destitute people in interim Afghanistan government. But surely, we need one assurance that the soil should not be allowed to take or to make any terrorist activities in our soil.
محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی تجویز ناقابل قبول ہے۔ There were certain statements from global leaders that number one, the Gazans can go to stay in and live in Egypt and Jordan. So we opposed it. Pakistan's stand has been very clear that this ceasefire should be perpetual and permanent, and the humanitarian aid should be allowed to be moving in Gaza unimpeded. There should be a two-state solution. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کی رکنیت کے حامی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ ریاض میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور بحرین کے منصب رمضان بن عبداللہ النعیمی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں میڈیا تعاون کو وسعت دینے اور مہارتوں کے تبادلے اور مشترکہ منصوبوں کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ میڈیا کے شعبوں میں روابط مزید مضبوط بنانے کے لیے میڈیا وفود کے تبادلے انتہائی اہم ہیں۔ وزیر اطلاعات نے بحرین کی نیوز ایجنسی BNA اور پاکستان کی نیوز ایجنسی APP کے درمیان خبروں کے اشتراک کی تجویز دی۔ وزیر اطلاعات بحرین نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ تعلقات قیادت کی دانشمندانہ رہنمائی کے تحت مختلف شعبوں میں مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔ بحرین کے وزیر اطلاعات نے میڈیا کے شعبے میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے اور مشترکہ کامیابیوں کو فروغ دینے کے لیے بحرین کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے سینٹ اجلاس میں واضح کیا کہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بند نہیں کرنے جا رہی بلکہ نجکاری کے ذریعے اسے بہتر کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت رواں سال رمضان پیکیج کے تحت 40 لاکھ مستحق افراد میں 20 ارب روپے کی نقد امداد تقسیم کرے گی۔ سینٹ اجلاس کی مزید تفصیل ارسلان اسد سے۔ صدر نشین سینیٹر عرفان الحق صدیقی کی صدارت میں سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت ہر سال یوٹیلیٹی سٹورز کو 50 ارب روپے کی سبسڈی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ برسوں رمضان پیکیج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کو 17 ارب روپے کی سبسڈی الگ سے دی جاتی رہی۔ تاہم اس سب کے باوجود غریب افراد کو یوٹیلیٹی سٹورز سے معیاری اور سستی اشیاء نہیں مل پا رہی تھیں، اس لیے اب حکومت اسے نجی شعبے کے تعاون سے مل کر منافع بخش ادارہ بنانا چاہتی ہے۔ اس کو ہم وائنڈ اپ نہیں کر رہے، بند نہیں کر رہے، لیکن اس کی ری اسٹرکچرنگ کر کے اس کو پرائیویٹائز یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس کی پرفارمنس اور ایفیشنسی بڑھے۔ جو پرماننٹ ہیں، جو کانٹریکٹ پہ ہیں، ان کا سٹیٹس ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو ہم جب اس پروسیس میں جائیں گے، پرائیویٹائز یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں گے، اس میں ان کی جو سروسز ہیں انشور کریں گے کہ اس کو کوئی لے آف نہ کرے، کوئی نکال نہ سکے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ پہلی بار رواں سال وفاقی حکومت رمضان پیکیج کے تحت 40 لاکھ مستحق افراد میں 20 ارب روپے تقسیم کرے گی۔ اسی طرح صوبے بھی مستحق افراد کو رمضان پیکیج کے تحت نقد امداد دیں گے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں احتجاجی سرکاری ملازمین سے متعلق سینیٹر شیری رحمان کے نقطہ اعتراض پر حکومتی رد عمل میں وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ سرکاری ملازمین ہمارا اثاثہ ہیں۔ پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ حق قانون اور آئین کے دائرے میں ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو ذمہ داری سونپی ہے کہ احتجاجی مظاہرین سے بات کریں۔ بلوچستان کے علاقے رجحان میں ایک بس سے 7 افراد کو اتار کر شہید کیے جانے کے واقعے پر سینیٹر عرفان الحق صدیقی نے کہا کہ دشمن ہماری صفوں میں نفرت پیدا کر کے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، تاہم پاکستانی عوام اپنے دشمن کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے سید یوسف رضا گیلانی کی بطور چیئرمین سینٹ کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپوزیشن کے سینیٹر کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جس پر وہ قابل تعریف ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جانب سے اپوزیشن کے 3 سینیٹرز کی معطلی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ سینیٹر دنیش کمار نے نقطہ اعتراض پر سندھ کے 3 اضلاع میں اقلیتی برادری کو مسلسل نشانہ بنائے جانے کا معاملہ اٹھاتے ہوئے سندھ حکومت پر زور دیا کہ وہ اقلیتی برادری کو تحفظ دے۔ سینٹ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں رمضان المبارک میں عوام کو کم قیمت پر چینی کی فراہمی یقینی بنانے پر غور ہوا۔
वफाकी वजीर ने तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को म्यूनसिपल सतह पर चीनी के स्टॉल्स लगाने की हिदायत की। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि 27 रमजान तक स्टॉल्स पर चीनी की 130 रुपए फी किलो में बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच जिसमें जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल कर ली। मैच के आखिरी लम्हात आप देख रहे हैं, टेम्पा बावोमा और ब्रेंट डॉटसन और मरकरम की निस्फ सेंचुरी। 108 रन से हराकर जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को इस टूर्नामेंट में कमज़ोर पोजीशन पर पहुंचा दिया। जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी। जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी, 108 रन से हरा दिया है। रियान रिकेल्टन की सेंचुरी, 103 रन बनाए हैं उन्होंने। जिशान कयूम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जिशान कयूम, आज का मैच काफी दिलचस्प रहा। जी बिल्कुल, काफ़ी दिलचस्प रहा है। पहले जो है वो साउथ अफ्रीका ने इब्तिदा में अच्छा खेल पेश किया, लेकिन बीच में अफगानिस्तान के बॉलर्स ने कुछ देर उनको मुज़ाहमत की, लेकिन उसके बाद आखिर में दोबारा से जनूबी अफ्रीका की टीम ने बेहतर खेल पेश किया। आज साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 6 विकेटों के नुकसान पर 315 रन बनाए। ओपनर रियान रिकल्टन ने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 106 गेंदों पर 103 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 1 छक्का और 7 चौके शामिल थे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की जानिब से जो है वो 3 निस्फ सेंचुरियां भी स्कोर हुई। उनके कप्तान टेम्बा बावुमा ने 58 रन बनाए, रॉसी वेंडर डूसन ने 52 रन बनाए, जबकि एडन मरकरम उन्होंने 52 रन की इनिंग्स खेली और वो नॉट आउट रहे। और अफगानिस्तान की जानिब से आज मोहम्मद नबी कामयाब बॉलर रहे, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और 316 रन के हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 43.3 ओवर्स में 208 रन बनाकर आउट हो गई है। रहमत शाह जो थे, जो चौथे नंबर पर उनके बैटिंग के लिए आए हुए थे, उनके अलावा कोई भी अफगानिस्तान का बैटर जो है वो नुमाया स्कोर न कर सका। रहमत शाह ने 90 रन की इनिंग्स खेली है, उन्होंने 1 छक्का और 9 चौके लगाए हैं। और जनूबी अफ्रीका की तरफ से कागिसो रबादा ने 3 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा एनगीडी और वियान मुल्डर ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलिंग की राह दिखाई है, जबकि मार्को जेनसन और केशव महाराज उन्होंने 1-1 विकेट हासिल किया है। यानी कि जनूबी अफ्रीका के तमाम बॉलर्स जो हैं वो विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और जनूबी अफ्रीका ने ये मैच 107 रन से जीत लिया है। जी जिशान, ये मैच ये बताइए कि अब आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स पोजीशन भी ज़रा वाज़ेह होती जा रही है। अगले मैच की भी थोड़ी सी आपसे तफसील ले लें कि एशेज़ की तरह अब ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो कल मैच होने जा रहा है, इसके बाद पॉइंट्स टेबल की पोजीशन आपको क्या बनती नज़र आ रही है? देखिए, अब अगले 2 दिन जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े एक्साइटिंग होने वाले हैं। शायकीन को इन्हीं दोनों मैचेस का इंतज़ार था। अब कल जो है वो लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये दोनों रिवायती हरीफ हैं, इनके दरमियान मुकाबला होगा और इसके तमाम टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो चुके हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये मुकाबला होगा, दिन 2 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इसके बाद इतवार को सबसे बड़ा टाकरा होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ये मुकाबला दुबई में होगा और ये भी 2 बजे ही दिन को शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। आज ग्रुप बी की जो पोजीशन है, आज क्योंकि ग्रुप बी का पहला मैच था, तो साउथ अफ्रीका ने अपना न सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल किए बल्कि उनका नेट रन रेट भी बहुत ज़बरदस्त हो गया है। 2.140 साउथ अफ्रीका ने जो है वो अपना नेट रन रेट कर लिया है। अब कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से एक टीम जो है वो जीतेगी तो वो भी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। और ग्रुप ए में इस वक्त न्यूजीलैंड जो है वो 1.20 नेट रन रेट के साथ सरे फहरिस्त है। हालांकि भारत भी एक मैच जीत चुका है, लेकिन उसका नेट रन रेट 0.4 है, यानी कि वो इतना अच्छा नहीं कर सके जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन से कामयाबी हासिल करके अपना रन रेट किया था। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ये अब तलाश में है कि वो भी अपनी कोई पहली कामयाबी हासिल करें, तो अगले मैचेस में जो है सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी दोनों ग्रुप्स। और यूएई के मैदानों में पाकिस्तान के लिए अपनी कामयाबी भारत के खिलाफ नागुज़ीर है, जिसके बाद ही पॉइंट्स पोजीशन बेहतर हो सकती है। जिशान, बहुत शुक्रिया आपका। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने
पाकिस्तान को हरा दिया जिस तरह आपने देखा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इतवार को हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने तीनों शोबों में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मशकें की और कंडीशन से हम आहंग होते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करना जरूरी है। ग्रुप ए में भारत और न्यूजीलैंड एक एक मैच जीतकर 2-2 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई पॉइंट नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच माजी का हिस्सा है, अब भारत के खिलाफ मुकाबले पर फोकस है। दुबई में भारत को 2 मरतबा शिकस्त दे चुके हैं, इसलिए इस मैच का कोई दबाव नहीं है। जो मैच गुजर गया वो तो गुजर गया। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है, अब इसके तरफ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है और अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है और कोशिश करेंगे कि जीतें इसको। सब लड़के बेस्ट देंगे, कोशिश करेंगे कि अपना पूरी एफर्ट लगाएं, वो चाहे तीनों शोबे हैं, फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है। कराची और दुबई के बाद अब कज़ाफी स्टेडियम में लगेंगे चौके और छक्के। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में कल रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबला दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मोज़मुद्दीन। धड़के दिल जोर से धड़के, देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कज़ाफी स्टेडियम 17 मार्च 1996 को खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बाद पहली बार ICC इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मैच की मेजबानी करेगा। कज़ाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में आमने सामने होंगी। मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत हरीफ है, कोशिश होगी कि अच्छा खेल पेश करें और टूर्नामेंट का फातिहाना आगाज करें। The environment in the group is great. The mood in the camp is really excited, and the perception is one of huge optimism looking forward. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना था कि पहला मैच बड़ी अहमियत का हामिल है। तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में कंडीशन से वाकिफ होने की कोशिश की है। Yeah, look, England are a great side. You know, they've been a very good white ball team for a long period of time, and yeah, we're looking forward to starting our campaign against them. Hopefully it's a belter of a game. मैच से कबल कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कज़ाफी स्टेडियम में मैच की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि मैच की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं। मोज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चैंपियंस ट्रॉफी के रंग स्कूल के बच्चों के संग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस की। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। ग्लेन मैक्सवेल और दीगर खिलाड़ियों ने तलबा की बॉलिंग का सामना किया। कप्तान स्टीवन स्मिथ ने बल्ले से करतब दिखाते हुए बच्चों को महजूज किया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कज़ाफी स्टेडियम में सजने को है तैयार। शायकीन क्रिकेट का जोशो जज्बा भी आसमान को छू रहा है। लाहौर के शायकीन के तासुरात के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। चैंपियंस ट्रॉफी के कांटेदार मुकाबले जारी हैं और अब बारी है कज़ाफी स्टेडियम में मैच की। कज़ाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। जिंदा दिलाने लाहौर क्रिकेट की दुनिया की 2 बड़ी टीमों का मुकाबला देखने के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, 2 सुपर टीम्स आपस में कॉम्बैट करेंगी और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये मैच लाइव देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि 29 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि पाकिस्तान में इतने बड़े टूर्नामेंट के इनेकाद पर बेहद खुश हैं। टीम कोई भी हो, स्टेडियम जाकर मैच जरूर देखेंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और हम तो बड़े एक्साइटेड हैं। टिकट्स वगैरह भी हमने ले लिए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है अभी कज़ाफी स्टेडियम का। इतनी जल्दी उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है, तो हम तो बड़े एक्साइटेड हैं जी। 29 साल का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ है। अब ICC ट्रॉफी जो है वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में खेली जा रही है। जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। कज़ाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर का जोशो जज्बा अरूज पर पहुंच चुका है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में फखर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ अनफिट होने पर बोझल दिल के साथ ड्रेसिंग रूम पहुंचे और आबदीदा हो गए। शाहीन अफरीदी और स्पोर्ट्स स्टाफ ने फखर जमान की हौसला अफजाई की। फखर जमान की जगह इमामुल हक को पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है वतन अजीज़ के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी, इंतशारी अनासर की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा कि कौमी महाज पर कामयाबियों से PTI की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। तफसील फहद अजीज से। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI जख्म चाट रही है। बानी PTI फौज को अपनी जमात का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे। ये लोग किसी ज़माने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे और इमरान खान समेत तमाम लीडरशिप जो है इनकी जो है टेलीविजन पे इस वक्त भी क्लिप्स मौजूद हैं कि आर्मी चीफ जो है वो बाप होता है, कौम का बाप होता है या इनका बाप होता है। 9 मई बर्पा किया, 26 नवंबर बर्पा किया, फौज के खिलाफ जो है जिसकी उनकी मिशन पे हमले किए, जिस तरह उनकी शोहदा की यादगारों पे हमले किए, ये सियासी पार्टियों का वतीरा दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है जो PTI ने अपनाया हुआ है। वज़ीर दिफा ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा ज़ाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह दी। इनका मकरू चेहरा बेनकाब हो रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल से हमारी मेहनत रंग ला रही है और मुल्क इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान की आवाम ये सब कुछ देख रही है और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है जो हालात इनके हो रहे हैं, अल्लाह ताला मईशत को भी इस मुस्तहकम कर रहा है। हमारी हुकूमत जो है कामयाबी के साथ अपना सफ़र जो है वो जारी रख रही है अल्लाह के फजल से। और इस तरह सियासी हालात भी सबके सामने अब हमें इनका जो मकरू चेहरा है वो सामने आ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमने सियासी इंतकाम का बहादुरी से सामना किया लेकिन कौमी वकार के खिलाफ कोई बात नहीं की। मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी से इंतशार की सियासत खत्म हो जाएगी। ये एक ज़ात के इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है, उसके अलावा मुल्क की कोई हैसियत नहीं है, मुल्क के अदारों की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ते नात जो हैं वो सारे के सारे उन पे एक सवालिया निशान है। ये लोग जो है मुल्क के साथ जो है ये इनकी जो इंतशार की सियासत है हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं जिन्हें मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़म हैं। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी कराची में मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल अनवर सयाल की रहायशगाह पर गए। सदर मुमलिकत ने सुहेल अनवर सयाल के चचा डॉक्टर जुल्फ़िकार सयाल के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। उन्होंने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। सदर मुमलिकत ने मरहूम की अदब के शोबे में खदमात पर खराज अक़ीदत पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर जिला करक में ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाते हुए 6 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। इलाके में मौजूद खवारिज को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िला करक में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी बहादुर अफवाज दिफाए वतन के लिए पुरज़्म हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोनाल्ड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉक हिल गैरिजन्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को बरतानवी फौज की जिद्दत के मंसूबे और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर मसनूई ज़हानत, बगैर अमले सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी का मुजाहरा भी किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सियासत में ख़वातीन को आगे आने का रास्ता दिया है। वालिदा की जमहूरी जद्दोजहद और पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर से खिताब करते उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनकर तारीख़ रकम की। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून हैं।
Benazir Bhutto's life was not simply a political journey. It was a testament to resilience in the face of adversity, to hope amid despair, to an unshakable belief the destiny of the nation could and should be shaped by its people. She stood for a Pakistan as democratic, progressive and inclusive, a Pakistan that honored its founding principles rather than betrayed them. She was the first woman to lead a Muslim-majority nation, but her fight was never just for women alone. It was for all those who were silent, all those who were marginalized, and all those who believed in a better tomorrow. मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने ज़िला बारामूला में मज़ीद 2 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर लीं। KMS के मुताबिक भारतीय पुलिस ने ज़िले के इलाके सोपुर में अफरोज़ अहमद और मकसूद अहमद की बागात पर मुश्तमिल 4 कनाल और 2 मरला अराजी काले कानून UAPA के तहत जब्त की। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से कश्मीरियों को उनके घरों, ज़मीनों और दीगर अमलाक से बेदखल करने की मुहिम तेज़ कर दी है, जिसका मकसद आबादी के तनासुब को तब्दील करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में जबर इस्तबदाद की इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि जावराना हथकंडों का मकसद कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ख़त्म करना और इन्हें भारत के आगे झुकने पर मजबूर करना है। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम पर भारत का मुहासबा करे। कांग्रेस मकबूजा जम्मू कश्मीर शाख के सदर तारिक हमीद कुरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल न करके कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कौमी इदारों को कमज़ोर करने का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना है। PTI को अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मालूम नहीं PTI वाले पसे पर्दा क्या कर रहे हैं। PTI के जो करते धरते हैं यहाँ बैठे, उन्हें गौर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। किसी के खिलाफ इस तरह की हरकतें करने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वो अपने रास्ते में मजीद कांटे बो रहे हैं, अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फिर एक लम्हा आएगा कहेंगे मुज़ाकरात करो, फिर कोई मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होगा तो फिर कोई और रास्ता चुनो। अभी कोई चांस है मुज़ाकरात का? हमारी तरफ से तो कोई चांस नहीं है। हमारे दरवाजे न पहले बंद थे न आज बंद हैं, लेकिन हम न किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, न किसी को पुकार रहे हैं, न हमें कोई ऐसी तड़प है कि कोई आए और हमसे बात। कोई शख्स डयाला में बैठा हुआ ख़त लिख रहा है अपनी तस्कीन के लिए, और वो ख़त वो नहीं लिख रहा, वो ख़त पता नहीं अमेरिका में लिखे जा रहे हैं, पता नहीं लंदन में लिखे जा रहे हैं, पता नहीं पाकिस्तान के किस गोशे में लिखे जा रहे हैं। आप तसव्वुर करें ना, 350 सफ़ों का एक ख़त जो उन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा, वो कोई जेल में लिख सकता है? तो पता नहीं कहाँ ये तसनीफ़ हो रहे हैं, उन पर अंगूठा लगा के वो चला दे। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि PTI को आइन और कानून से हटकर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI सियासी नहीं इंतशारी सोच रखती है। एहतजाज के नाम पर किसी को शहरियों की ज़िंदगियाँ अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। जब आपने एहतजाज किया, आपने कानून को अपने हाथों में लिया, तो जब कानून आप तोड़ेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा। ये कह देना कि हम इस्लामाबाद पे धावा बोलें, इस्लामाबाद पे चढ़ाव करें, इस्लामाबाद पे पड़ाव करें और यहाँ पे यहाँ के सिटीजन्स की या पूरे मुल्क के शहरी हैं उनकी जिंदगियां हम अजीरन कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। कानून तो फिर हरकत में आएगा। आप एक इंतशारी सोच रखते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, जिस तरह आपने 9 मई को फैलाया, जिस तरह 26 नवंबर को फैलाया। और पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। उनकी फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए। अज़मा बुखारी ने कहा कि जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। खत लिखने से ना डील मिली है और ना ही मिलेगी। पंजाब को तारीख, तहजीब और सियाहत का आलमी मरकज बनाने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे के तहत सूबे भर में 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पंजाब की 1000 साल की तारीख को महफूज किया जाएगा और दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस भी
बेहतर होगा। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे के तहत 170 मकामात को आलमी म्यार के सियाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा, जिनमें 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है, जबकि सूबे की पहली जामे टूरिस्ट पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन को अमली शक्ल देने के लिए इन तमाम मंसूबों की मंजूरी दी है। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब के तारीखी मकामात की बहाली 3 मराहिल में मुकम्मल होगी। तारीखी और सियाहती मकामात के लिहाज से सूबे को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन इलाकों में सफारी ट्रेन भी चलेगी। शानदार पंजाब मंसूबे के तहत तारीखी शहर टेक्सला को इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। मंसूबे में टेक्सला म्यूजियम की अपग्रेडेशन, जदीद डिस्प्ले सेंटर, बुद्ध मत के पैरोकारों की सहूलत के लिए इबादतगाह, सिद्धार्था के नाम से नई गैलरीज की तामीर भी शामिल हैं। छांगा मांगा को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर जदीद तफरीगाह में तब्दील किया जाएगा। बांसरा गली में टूरिस्ट विलेज और पार्क तामीर किए जाएंगे। सियाहों की सहूलत के लिए डिजिटल ऐप भी तैयार कर ली गई है। माल रोड लाहौर की तारीख महफूज करने के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया जाएगा, जिसमें नीला गुंबद की तोसी भी शामिल है। इसके साथ लाहौर के अजायब घर को जदीद बनाने के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम साहिबा ने शानदार पंजाब के नाम से एक प्रोग्राम का इंट्रोड्यूस करवाया है और इस प्रोग्राम में पूरे पंजाब में 170 साइट्स हैं, जिसमें कि कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए इन साइट्स की रिहेबिलिटेशन, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के ऊपर काम किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तमाम अक़लियतों के मजहबी और तारीखी मकामात की बहाली और इनकी हिफाजत के लिए फौरी इक़दामात की हदायत की है और कहा है कि शानदार पंजाब मंसूबे के जरिए पंजाब की 1000 साल की तारीख महफूज होगी और सूबे की सकाफत, तारीख और रवायात को फ़रोग मिलेगा। तारीखी मकामात की बहाली से न सिर्फ सियाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस भी उजागर होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और नादरा से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की ई वोटिंग के लिए किए गए इक़दामात की 2 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ई वोटिंग की सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर IT ने अदालत को बताया कि ई वोटिंग से बड़े पैमाने पर हैकिंग का खतरा है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात लेने के बाद 35 हलकों में आजमाइशी बुनियादों पर ई वोटिंग कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा कराई जा चुकी है। 1 से 3 घंटे में ई वोटिंग निज़ाम पर भरपूर हमला किया गया। भारत, इसराइल और फिलिपाइन से हैकिंग की कोशिश की गई। उन्होंने मजीद बताया कि रिपोर्ट के जायजे के बाद सेनेटर्स ने ई वोटिंग न कराने का कहा था। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि कल हमास 6 इसराइली यरगमालियों और इसराइल 602 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। दूसरी जानिब हमास ने इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले को सबोताश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर बातचीत में रुकावट हैं। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल के जंगी जराइम की भी तहकीकात करे। उधर गजा में कल से पोलियो मुहिम का भी आगाज़ होगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 10 साल से कम उम्र 5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। रूसी सदर ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी क़यादत ने बातचीत के लिए अच्छा माहौल फराहम किया है। वज़ीर ख़जाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब से मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वज़ीर ख़जाना ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फराहमी का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा कि MIGA के साथ मुस्तक़बिल में मज़ीद ताउन के ख़्वाह हैं। वफ़द ने पाकिस्तान में मालियाती इदारों की मावनत का अज़्म ज़ाहिर करते हुए मुख्तसर मुद्दती क्रेडिट गारंटी की अहमियत पर रोशनी डाली। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में रमज़ान और ईद उल फितर के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ।
इजलास में बताया गया कि पंजाब में आलू की बेहतरीन फसल के बायस कीमतों में कमी आई है, जबकि प्याज, टमाटर और चीनी की कीमतें मुस्तहकम हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि कीमतों का फ़र्क कम करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मार्केट्स का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जाए। उन्होंने नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए भी मौसर इक़दाम की हिदायत की। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम के समरात आना शुरू हो चुके हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कॉन्वोकेशन के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। पानी और पेट्रोलियम के वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क माशी तरक्की की तरफ गामजन है और महंगाई की शरह कम हुई है। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात मुल्क में इंतशार और तोड़ फोड़ की सियासत को फरोग देकर डायलॉग का दावा कैसे कर सकती है। मगर वो जमात जो कहे कि मैं कब्र तक पीछा करूंगी, वो जमात जो कहे कि हम कब्जा करने आ रहे हैं, वो जमात जो कहे कि हम जेलें तोड़ के कैदियों को आजाद करके ले जाएंगे, वो जमात जो पार्लिमान की दीवारें क्रेनों से तोड़ के उसके ऊपर कब्जा करे, वो जमात जो पीटीवी के ऊपर कब्जा करके विक्ट्री के निशान बनाए जैसे कोई गैर मुल्की ताकत आ गई जिसने मुल्क पे कब्जा कर लिया है, वो जमात जो 4-4, 6-6 दिन सेक्रेटेरिएट बंद कर दे ताकि मुल्क के काम ना हो सके, वो कोई डायलॉग नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के 5वें कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तालीम ही पायदार तरक्की की जामिन है और ये इनफरादी जिंदगी के साथ माशरे की मजमूई बेहतरी का भी बायस बनती है। उन्होंने कहा कि हम वतन अजीज को ऐसी सरजमीन बनाने के लिए कोशा हैं जहाँ खास तौर पर हमारी बेटियाँ सर उठाकर चल सकें। गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश की। वफाकी वजीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में मेडल और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा में शील्डें तकसीम की। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और फ़लस्तीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट तारिक हुसैनी ज़ाराब की मराकश में मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन की इखलाकी, सिफारती और हर तरह की मदद जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर ने ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मालदीव, ओमान, फ़लस्तीन और बांग्लादेश के वज़रा से भी अहम मुलाकातें की। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, अभी आपको बताएं वफाकी वज़ीर हाउसिंग मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा की सदारत में होने वाले इजलास में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी में डिजिटल पोर्टल के मुख्तलिफ पहलुओं और नुमाया खुसूसियात का जायज़ा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर को पोर्टल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मियां रियाज हुसैन पीरज़ादा ने इस इक़दाम को ई गवर्नेंस की तरफ एक अहम कदम करार दिया जो मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। तमाम शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह -5, काला -4, पाड़ा चिनार मालम जब्बा -3, कलात रावलाकोट और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहले जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 8, कराची 18, पेशावर 7, जबकि कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू में 10, लह -5, पुलवामा 2, जबकि शोपियां में भी कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। शुक्रिया कासिम। इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल करते हुए ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और सलमा कौसर को इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।